السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدی نصلی نسلم علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، میں پھر سے آپ کے سامنے سید خواجہ دربان اردو اسلامک چینل کو لے کر حاضر ہوئی ہوں، جس کے ذریعے میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں مطالعہ کر کے آپ کے سامنے تمام اسلامی واقعات کو بیان رکھ رہی ہوں۔ جتنے بھی سبسکرائبرز ہیں، جنہوں نے بھی سبسکرائب کیا ہے میرے چینل کو، میں ان سب کی تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ جو نہیں کیے ہیں، تمام ہمارے خواتین سے، تمام میرے میٹھے میٹھے عزت دار بھائیوں سے، بہنوں سے گزارش کرتی ہوں کہ ہمارے ویڈیو کو شیئر کریں، چینل کو کمنٹ کریں، ویڈیو کو پوری طرح سے دیکھیں، فالو کریں، ثواب دارین حاصل کریں، اور دین کی بات کو پھیلانا بھی بہت بڑا ثواب ہے۔ دین کی بات کو پھیلانے کی کوشش بھی کریں۔ جتنے بھی ہمارے تقریباً مرد حضرات، ہمارے میٹھے میٹھے بھائی لوگ میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، میں ان سب کی بھی تہہ دل سے گزار ہوں۔ میری بہنوں سے گزارش ہے، میٹھی میٹھی بہنوں سے، کہ وہ بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو پوری طرح سے دیکھیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سبسکرائب کرائیں۔ ہمارا مقصد ہے آپ کو سچے واقعات سے آگاہ کرانا اور سچی بات کا آپ کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں مطالعہ کر کے آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں۔ آئیے، میں جو آج کا 10واں بیان حضرت ابو القاسم جنیدی بغدادی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ کو لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ حضرت جنید بغدادی اپنے زندگی کا ایک عجیب واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ایک دن میرا گزارا کوفے کی طرف ہوا۔ وہاں میں نے ایک عالی شان مکان دیکھا جو کسی بڑے رئیس کی ملکیت معلوم ہوتا تھا۔ مکان کے چاروں طرف بڑی چہل پہل نظر آ رہی تھی، قدم قدم پر دولت کے کرشمے نمایاں تھے۔ اس مکان کے کئی دروازے تھے اور ہر دروازے پر نوکروں اور غلاموں کا ہجوم نظر آ رہا تھا۔ ابھی میں دل ہی دل میں ان لوگوں کی بدمستی اور بے خبری پر افسوس کر رہا تھا کہ اچانک ایک خوشگل عورت کی آواز سنائی دی۔ میں نے غور سے سنا، وہ عورت نہایت دلکش آواز میں یہ اشعار گا رہی تھی: اے مکان، تیرے چاروں دیواروں کے اندر کبھی کوئی غم نہ آئے اور تیرے رہنے والوں کے ساتھ یہ ظلم و ظالم زمانہ کبھی مذاق نہ کرے۔ جیسے کہ اس کی عادت ہے کہ وہ بڑے بڑے محلات کو آن کی آن میں ویران کر دیتی ہے۔ جب کوئی مہمان بے گھر ہو تو ایسے مہمان کے لیے تو کیسا اچھا گھر ہے۔ حضرت جنید بغدادی نے عورت کے اشعار سنے تو یہ کہتے ہوئے آگے تشریف لے گئے، ان لوگوں کی حالت بہت نازک سنگین ہے، یہ دنیا اور اس کی رنگینیوں میں مکمل طور پر غرق ہو چکے ہیں۔ پھر ایک مدت کے بعد اتفاق سے حضرت جنید بغداد کا گزارا اسی محل نمایاں کی طرف سے ہوا۔ آپ نے حیران ہو کر اس عشرت کدے پر نظر ڈالی، کوئی نوکر اور غلام وہاں موجود نہیں تھا۔ در و دیوار انتہائی خستہ ہو چکی تھی اور جگہ جگہ سے اینٹیں گر رہی تھی۔ ریشمی پردے دھجیوں میں تبدیل ہو کر پیوند خاک ہو چکے تھے، دروازے تباہ ہو گئے تھے۔ اب نہ صاحب زائزات تھا، نہ دربان فانوس، نہ خیموں کی جگہ، نہ چمگاڑوں نے اپنے مشکن بنا لیے تھے۔ جب کمروں میں شہر کے بڑے بڑے امراء جمع ہوا کر داو عشق دیا کرتے تھے، اب وہاں آوارہ کتوں نے ڈھیر ڈال دیے تھے۔ ہر طرف ذلت و نحوست برس رہی تھی اور ہاتف غیبی اشعار پڑھ رہا تھا۔ اس کی ساری خوبیاں جاتی رہیں، رنج و علم نمایاں ہو گئے۔ زمانے کا یہی مزاج ہے کہ وہ ایسے کسی مکان کو صحیح و سالم نہ چھوڑے گا
लिहाजा इस मकान के अंदर जो अंस मोहब्बत पाया जाता था इसे वहशत में तब्दील जमाने का यही मिजाज है कि वो ऐसे किसी मकान को सही सालम नहीं छोड़ेगा। लिहाजा इस मकान के अंदर जो अंस और मोहब्बत पाया जाता था इसे वहशत में बदल गया और कैफियत और सुरूर की जगह शोर मातम बर्पा कर दिया। मकान की ये हालत देखकर हजरत जुनैद बगदादी को बहुत अफसोस हुआ। फिर आपने एक पड़ोसी से पूछा, इस इसरत कदे के मकीन कहाँ चले गए? पड़ोसी ने बताया, मालिक मकान मर गया और इसके मरते ही मकान की सारी रौनकें भी रुखसत हो गए। अब इस मकान में कोई भी नहीं रहता। हजरत जुनैद बगदादी ने अफसुदा लहजे में पूछा, इस बूढ़ी औरत किस कमरे में पड़ी रहती है? पड़ोसी ने बताया, महल्ले वाले तरस कर खाकर इसे खाना खिला देते हैं, वरना ये औरत मकान छोड़कर कहीं नहीं जाती। हजरत जुनैद बगदादी इस्तराब के आलम में इस कमरे तक पहुंचे और दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से एक गमजदा औरत की आवाज भरी, कौन है? मैं अल्लाह का एक बंदा हूँ। हजरत जुनैद बगदादी ने फरमाया, वापस चले जाओ। औरत ने इंतहाई अफसुदा लहजे में कहा, अब मेरे सिवा यहाँ कोई नहीं रहता। वो जमाना रुखसत हुए जो मुझे गरीब को परेशान ना करो, दरवाजा खोलो। हजरत जुनैद बगदादी ने फरमाया, मुझे तुमसे एक जरूरी काम है। औरत ने दरवाजा खोल दिया और हजरत जुनैद बगदादी को हैरत से देखने लगी। इस मकान की वो आबदाब, वो चांद सूरज, परी चेहरा लोग, वो कनीज, वो गुलाम और ऐसे इसरत के वालिद लोग कहाँ चले गए? अब जुनैद बगदादी ने इस औरत से पूछा। ये सुनकर औरत जर्र खता रोने लगी। आसाइश की वो चीजें किस और की थी? इस मकान के रहने वाले गलती से इन्हें अपना समझ बैठे थे। सारा साधु साबान किराया का था, जहां से आया था वहीं चले गया। कई साल पहले जब मैं इधर से गुजरा था तो मैंने एक औरत को यह अशआर पढ़ते सुना था। हजरत जुनैद बगदादी ने वही अशआर दोहराए। इस औरत ने एक आसर्द खींची और निहायत रखत अमेज लहज में बोली, खुदा की कसम मैं वही औरत हूँ जिसकी जबान से आपने ये अशआर सुने थे। फिर आलिशान मकान और इसके मकीन इस हाल को कैसे पहुंचे? हजरत जुनैद बगदादी ने पूछा, इंसान जिस दुनिया पर गुरूर करता है वो दुनिया बाकी नहीं रहती, बस इसके हाल पर मातम इबरत करने वाले बाकी रह जाते हैं। औरत की आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। फिर तुम इस वीरान में अकेली क्यों पड़ी हो? हजरत जुनैद बगदादी ने इस शिकस्ता औरत से पूछा, आप भी कैसा जुल्म करते हैं कि मुझे इस मकान को छोड़कर कहीं और चले जाने के लिए कहते हो? इस औरत ने निहायत गमज़दा लहजे में जवाब दिया, क्या ये मकान मेरे दोस्तों और प्यारों का मस्कन नहीं था? क्या इन गली मोहब्बतों की यादगारों का नहीं है? फिर मैं इसे छोड़कर कैसे चली जाऊं? कहने वाले क्या कहेंगे? मैं जरूर रौनकों और खुशियों की हम नशी थी, बदहाली और वीरानी की शरीक नहीं। ये तो बड़े बदअहद होगी। लोग मेरे अमल को बदतरीन बेवफाई से ताबीर करेंगे। मैं इस वक्त तक यहाँ से नहीं जाऊंगी जब तक कि मेरा जिस्म इस इमारत के मलबे में दफन नहीं हो जाए। ये कहकर इस औरत ने एक और शेर पढ़ा जो मोहब्बत की खलिश और सूझ गुजार से लबरेज था। मेरा दिल मुकामात मोहब्बत की ताजीम करता है, अगरचे इनके कमरे न्यामत व माल से महरूम हो चुके हैं। ये शेर सुनते ही हजरत जुनैद बगदादी की आंखों से आंसू जारी हो गए। सच क्या कहा तुमने? हजरत जुनैद बगदाद पर कैफियत वजज़्ब की अजब कैफियत तारी थी। फिर आप इसी आलम में बगदाद तशरीफ ले आए। इस वाक़े का जिक्र करते हुए हजरत जुनैद बगदाद फरमाते थे, आज भी मुझे उस औरत के खुलूस और इस्तिक़लाल पर हैरत होती है। दरअसल इश्क व सादिक इसको कहते हैं कि इंसान एक दर का पाबंद हो जाए, फिर चाहे मौज खून सर से गुजरे या क़यामत नाजिल हो जाए, मगर इश्क इस आस्ताने पर पड़ा रहे, आशिक इस आस्ताने पर पड़ा रहे। बेशक वो औरत अपने इश्क में सच्ची थी, इसके जरिए
मालूम गैब ने भी मुझे ये सबक दिया है कि इश्क क्या है और वफादारी किसे कहते हैं। आपने आज अबुल कासिम जुनैद बगदाद रहमतुल्लाह अलैह के इस वाक़े में तवज्जो फरमाया, जिसमें उन्होंने एक मालदार औरत की कैफियत और मालदारी ख़त्म और लोग ख़त्म, दुनिया ख़त्म होने वाली चीज़ है, इस पे कई लोग नाज कर रहे हैं। दुनिया की चमक में अपने आप को बहुत बड़ा कह रहे हैं। मैं उन लोगों से गुजारिश करती हूँ कि ये दुनिया खत्म होने वाली है, तो हमें जाओ जलाल की क्या जरूरत है, हमें रुपए पैसे की क्या जरूरत है। एक अल्लाह वली को दिखावा करने की जरूरत नहीं है। एक अल्लाह वली को यानी अपने आप को बादशाह बनाने की जरूरत नहीं है। अल्लाह वली अल्लाह का फकीर होता है। मैं अल्लाह के सफीर से हजरत अबुल कासिम जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का जो वाक़ा बयान कर रही हूँ, इससे हमको यह सबक मिलता है कि हम रुपए पैसों के बल पे अपने आप को बड़ा नहीं साबित करना चाहिए। हम अपने आप को दौलतमंद या बहुत बड़ा ऊंचा इंसान, रियाकार इंसान बोल के साबित करना नहीं है। हम गरीबी के साथ, मुफली किसी के साथ हमारे आका की हर सुन्नत को निभाना है, वलियों की हर सुन्नत को निभाना है। और याद रखना है कि हमें ये दुनिया छोड़कर, ये घर छोड़कर, ये बंगला छोड़कर, ये आशियाना छोड़कर, या ऐशो इशरत ऐश कदा छोड़कर हमको यानी अपने मुकाम पे, असली मुकाम पे मुंतकिल होना है। ये हमेशा याद दिलाता है हजरत अबुल कासिम जुनैद बगदाद रहमतुल्लाह अलैह का वक्त का ये वाक़ा। आज के कई लोग अपने प्यारों को, अपनी गुजरी हुई जिंदगी को, गुजरी हुई गरीबी को भूल चुके हैं। जैसे ही दौलत आती है सिर्फ दौलतदारों के साथ रहते हैं। ऐसे मुल्लाओं से, ऐसे गद्दी नशीन वालों से जो गरीबों को छोड़कर अमीरों के पीछे भागते हैं सिर्फ पैसों के खातिर, ये रियाकार हैं, ये वली नहीं है। ये रियाकार और शैतान की बेश में वली बनकर बैठे हुए हैं। ऐसे मुल्लाओं से, ऐसे गद्दी नशीनों से बचने की कोशिश कीजिए। मैं हर वक्त आपको किस तरह समझाऊं कि मैं मुतालिया करके आज का हर आलम देख रही हूँ कि कौन कैसा था, क्या हो गया और क्या हो रहा है। किसी को अल्लाह की जो फिक्र होती है वो मोटा नहीं होता, दुबला होता है। वो हर वक्त फाखे में रहता है, हर वक्त रोजे में रहता है, हर वक्त जिक्र में रहता है। उसे बनना, शहरना, शेरवानी पहनना, जुब्बे पहनाने का ख्याल तक नहीं आता। इश्क अल्लाह में, इश्क के मोहम्मद में, इश्क के वली अकराम में अपने आप को यानी क्या बोलते यानी लगाए रखता है, मुख में रहता है। उसको दुनिया के जाओ जलाल, दुनिया को सजने की, संवरने की जरूरत नहीं होती। आज ऐसा जो कर रहे हैं आप समझ रहे हैं, ये हजरत अबुल कासिम जुनैद बगदादी का वाक़ा से सबक जरूर लेना चाहिए। क्योंकि ना ही बंगला रहेगा, ना ही गाड़ी रहेगी, ना ही मोटर रहेगा, ना ही यानी क्या बोलते कोई चीज हमारे साथ नहीं रहेगी, सिर्फ ईमान और इस्लाम और कलमा रहेगा। इसलिए मैं आप सबको एक कलमे की तरफ बुलाती हूँ, हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। आइए हम सब एक नारा लगाएंगे, अल्लाह और अल्लाह के रसूल से इश्क करेंगे, अल्लाह के दोस्त और साहबा कराम, तबाए ताबाइन और बुजुर्गान दीन से मोहब्बत करेंगे, सच्ची मोहब्बत करेंगे, झूठ से बचेंगे। एक दर पे होना है तो ये दिखावे कार मुल्लाओं से बचना है। जो करीब है, जो दीन की रागबत रखता है, वैसे से जुड़ जाएंगे और दीन सीखेंगे और दूसरों को सिखाएंगे। ये अहद आज करने की जरूरत है। मैं यही बात करते हुए मैं अपनी बात को यहीं पे खत्म करती हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरी तरह से देखें, फॉलो करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरी बात को गौर से, मेरे हर एक बयान को सुने। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।